সরকার তাদের জল জমি জঙ্গলের অধিকার স্বীকৃত করেছে। ইউপিএ 1 সরকার, মনমোহন সিং এর সরকার তখন বামপন্থীদের 65টা এমপি বাইরে থেকে সাপোর্ট করেছিল। মানুষ তাই ভাবেনি, ভেবেছে ऐसा ही चलता है, घर का खाना ठीक नहीं लगा, बोले बहुत खा लिया दाल भात चल गया, तो राम सिनेमार মতন অভিষেকের রোগা পাতলা বন্ধুটার মতন 5 টাকার কাওয়া বিরিয়ানি খাইয়ে দিল। বললো যে 5 টাকায় কাওয়া বিরিয়ানিটা কি, বললো যে আরে তাও কাকটার মুরগিটার পোলিও হয়ে গেছিল। আরে আমাদের বাড়িতে তো যদি মুরগির বার্ড ফ্লু হয়ে যায় তো আমাদের মারা বাড়িতে মুরগির মাংস আনা বন্ধ করে দেয়, আর গোটা ত্রিপুরাকে 5 টাকার কাওয়া বিরিয়ানি খাইয়ে দিল। সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে নিতে হবে। ভোট তালিতে, হাসিতে, ঠাট্টাতে, মজাতে, খিল্লিতে হবে না। ভোট মানে আপনার ট্যাক্সের টাকা আপনার সরকার, আপনার এমএলএ আপনার উন্নয়নের জন্য কাজে লাগাচ্ছে কিনা। আপনার বাচ্চার মিড डे मीलेর টাকা কেটে নিল। राशनिंग सिस्टम अभी इसके बाद भारतवर्ष में नहीं चलेगा ठीक तरह से, क्योंकि एफसीआई के अंदर जो भी पैसा था जो सैंक्शन किया जाता था 2022 में भी, वो भी 2023 में उससे भी कटलमेंट किया गया। लेकिन देखिए 56 इंच का छाती है, साहस है। মানুষের বিরুদ্ধে বুলডোজার চালিয়ে দেবার তাদের মধ্যে বুকের ধক আছে। 2024-এ লোকসভা ইলেকশন, তার আগে 2023 জনবিরোধী বাজেট পেশ করলো, যে বাজেটের বিরুদ্ধে গোটা দেশ এক হয়ে মিটিং করলো। তৃণমূল নেই, এটা আলাদা কথা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক গাদা এমপি নিয়ে এসছে। মারা একটু ভালো রান্না করার জন্য কখনো কখনো তেজপাতা দিয়ে দেয়, কিন্তু যখন খেতে দেয় তখন বাটি থেকে তেজপাতাটা ডাস্টবিনে ফেলেই দিয়ে দেয়। এখন মোদির জন্য ভালো সবজি বানাতে হবে, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল নামক বিজেপি ওই যে তেজপাতার পাতাটাকে আমদানি করেছে, বিরিয়ানি তৈরি হয়ে যাবে, তেজপাতাটাকে ফেলে দিবে। সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে হবে, তেজপাতা চিবাবেন না তেজপাতা ফেলে দেবেন ডাস্টবিনে। আমরা বুঝছি পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র যুবরা আমাদের সব থেকে বড় দোষ আমরা যদি পরীক্ষায় পাস করে যাই, আমাদের সব থেকে বড় দোষ আমরা যদি কলেজে স্কুলে ভালো করে পাস করে যাই, আমাদের সব থেকে বড় বিপদ আমরা যদি চাকরির পরীক্ষায় পাস করে যাই। আমাদের রাজ্যে সাদা খাতার বিরাট মজা, ওখানে সাদা খাতা জমা দিলেই চাকরি হয়ে যায় যদি বাপের জমি বিক্রি করার টাকা তৃণমূল নেতাকে ঘুষ দিতে পারা যায়। আর আমাদের রাজ্যে পাস করা ছেলে মেয়েদের বিপদ, যে পাস করলেই অনুসরণ করতে হয়। কলকাতার রাস্তায় যান, গিয়ে দেখে আসুন, মেলা খেলা প্রচুর হয়তো আমাদের রাজ্যে। গোটা কলকাতা জুড়ে বেকারদের মেলা লেগে আছে, চারিদিকে ফ্লেক্স লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বেকার মেধাবী ছাত্র যুবরা চাকরির দাবিতে অনশন করছে, মারা যাচ্ছে, সুইসাইড করছে, খুনের বাজার তৈরি করে রেখেছে। খুনের বাজার কে লড়বে বিজেপির বিরুদ্ধে? কে? কার সাহস আছে? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ কারখানার উপরে বুলডোজার চালিয়ে দিতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইটা, তার বিরুদ্ধে আসবে। খবরের কাগজে কোর্ট এফিডেভিট দিয়ে বলেছে আমরা মিথ্যেবাদী। अमित शाह बोले আমরা মিথ্যেবাদী। जुमला, जुमले का मतलब भारतवर्ष में मजाक होता है, और আমরা গায়ে বলি ঠাট্টা ইয়ার্কি খিল্লি করা। আর গায়ে বলে যে শালি জামাই বাবুর সঙ্গে ইয়ার্কি করে আর দাদু নাতি নাতিনির সাথে ইয়ার্কি করে। মোদির সাথে না তো আমাদের শালি জিজার সম্পর্ক, আর নাতি বিজেপির পার্টিটার সাথে দাদু নাতির আমাদের সম্পর্ক, যে আমাদের কাজ কারখানা রোজগার নিয়ে তারা আমাদের সাথে ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে। আমরা আবারও বলছি, খিল্লি ঠাট্টা ইয়ার্কির ভোট নয়, নয়। জাতি উপজাতি মিলে 40-এর দশকে গোটা ত্রিপুরাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই চলেছে। সেই লড়াইয়ে ত্রিপুরার মায়েরা প্রাণ দিয়েছে, আদিবাসী বাড়ির মায়েরা প্রাণ দিয়েছে। আর আজকে भारत माता की जय बोलते हुए बीजेपी पार्टी का त्रिपुराते 407টা মাকে রেপ করেছে। কেন? জায়গা হয় লেবার রুম, নইলে কিচেন রুম। আর আদিবাসী বাড়ির মেয়েরা, ওরা তো এমনি মাগনা পাওয়া যায়, ওদের ফ্রিতে পাওয়া যায় ওদের মান সম্মান। এই জন্য বিজেপির সাথে আমাদের বিরোধ। এই জন্য কথা ভোট পেয়েছে বলে, জিতে যেতে পারে বলে, তার জন্য নয়।
কংগ্রেস 1500টা পুকুরে বিষ ফেলে দিয়েছে, দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, খুন করেছে, খবরের কাগজের অফিস ভাঙচুর করে দিয়েছে, লেনিনের মূর্তি ভেঙেছে, দশরথ দেবের মূর্তি ভেঙে দিয়েছে। তারপরে হতাশ বিজেপি, চাকরি না দিতে পারা বিজেপি বাইক বাহিনী তৈরি করেছে, বিশাল বাইক বাহিনী। আমরা বলতে চাইছি বাইক বাহিনীদেরকে যে আজ 13 তারিখ, কালকে বিকেল 4টায় প্রচার শেষ, একটু শান্ত হও, বাড়ি যাও, বুড়ো মা বাপের সাথে শেষ চাটা খেয়ে নাও, আর খেতে খেতে আলোচনা করো যে বাপ মায়েরা তোমরা কি চাও, আমি লাঠি নিয়ে বাইক বাহিনী হই নাকি আমি চাকরি করি। যদি আপনাদের মা বাপরা বলে যে না চাকরি চাই, তাহলে এই বিধানসভাতে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে হাত চিহ্নে ভোটটা দেবার জন্য নিজেরা না দিতে পারলে ভোট লুট করতে এসো না, এসো না। আর যদি চাও যে ওই যা কাজ করছিলে তাই কাজই করবে, তাহলে 16 फरवरी पर अगर कोई हालत बिगाड़ने आएगा तो उसका भी सूरत बिगाड़ने का पूरा बंदोबस्त रहेगा, पूरा बंदोबस्त रहेगा। সবার শাস্তি হবে, সবার। যে পুলিশ কাজ করেনি তার শাস্তি হবে। সরকার আসছে। আজকে কড়वा दवाई था 2014 पर मोदी বলেছিল না যে একটু कड़वा दवाई होगा, जीएसटी नोटबंदी बोला था ना, कड़वा दवाई। आज त्रिपुरा मोदी जी को अस्ताबल का मैदान में कड़वा दवाई पिला दिया है और वो फ्लाइट पकड़ के निकल गए हैं। उनको सावधान, सही बोला आपने, सावधान। विपद सामने, लड़ाईটা কঠিন, লড়াইটা তীব্র। আমরা একজন বিধায়ককে বিধানসভার ভেতরে পাঠাবো হাত চিহ্নে জিতে বাম কংগ্রেস জোটের পক্ষ থেকে, কিন্তু আমাদের বাইরের লড়াই থামবে না। ছাত্র যুবরা একটা বিধায়ককে বিধানসভার ভেতরে পাঠিয়ে নাকে তেল দিয়ে পাশ ফিরে ঘুমানোর জন্য এই বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এখানে দাঁত কামড়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকিনি। এই লড়াইটা বিধানসভার ভেতরে বিধায়কের লড়াইটা যাতে আরো তীব্র হয়, তার জন্য রাস্তার লড়াইটা আমাদের আরো জোরদার হবে। তার জন্য আমরা এই লড়াইয়ে নেমেছি, কারণ ভবিষ্যৎটা আমাদের, গোটা ত্রিপুরাতে বেকার ছাত্র যুবদের ভবিষ্যৎটা আমাদের। তাই দেশ বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী, সংবিধান বিরোধী, দেশের অখণ্ডতা বিরোধী, দেশের মানুষের বিরোধী যে সরকারটা আজকে আদানিদের দালালি করছে, দেখুন আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, দেখুন কর্মসংস্থানের রেট দেখে নিন, হয় না, সম্ভব নয়। যে নীতিতে ওরা চলছে সেই নীতিতে পারবে না। তাই এই নীতির বিরুদ্ধে আমরা, যারা আমাদের ব্যাংকের টাকা আদানির পকেট গরম করে দিচ্ছে, যারা এলআইসির টাকা দিয়ে আদানিদের পকেট বিক্রি করে গরম করে দিচ্ছে, সেই নরেন্দ্র আদানি দাস মোদীকে, তার নেতৃত্বে বিজেপিকে হারানোর জন্যই এই লড়াইটা আমাদের। ওরা আমাদের কাছে রুটির টুকরো ছুড়ে দিতে চাইছে, বলছে স্মার্টফোন দিয়ে দেবো মেয়েদেরকে, স্কুলে কলেজে যারা পড়ে। আর এবারে মিস কলে চাকরি দেবার পর বলেছে স্কুটি দিয়ে দেবো। सब झूठा कमिटमेंट है। वो बात तो अलग है। अगर आपका घर में स्कूटी मिल भी जाता है तो पूछिएगा कि स्कूटी चलाने का पेट्रोल कौन देगा, रामदेव बाबा या मोदी जी का बाबा, कौन देगा? তাহলে রুটির টুকরো আমাদের সামনে ছুড়ে দিতে চাইছে। আমরা টুকরো রুটি চাইছি না ছাত্র যুবরা, আমরা একটা গোটা আস্ত রুটি চাইছি। আর সেটা কারো ছুড়ে দেওয়া নয়, সেটা নিজেদের মেধা আর শারীরিক শক্তি পরিশ্রম দিয়ে সেই রুটিটা আমরা রোজগার করতে চাইছি, মাথা উঁচু করে একটা কাজের জায়গা চাইছি, যে কাজের জায়গাতে নিজের প্রয়োজনে রুটিটা নিজে নিজে কামাই করে যাতে আনতে পারি। সেই সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য এই বিধানসভাতে বাম কংগ্রেস জোটের, ওরা বলছে অশুভ জোট, মানুষের জন্য শুভ, বিজেপির জন্য অশুভ। রাতের বেলায় যারা দূর দেখতে পেয়ে যায় তাদেরকে পশু বলে, মানুষ সাধারণত দেখতে পায় না। ওরা বাম কংগ্রেসের জোটকে অশুভ দেখতে পেয়ে গেছে। আমরা অ্যাডমিট করছি, হ্যাঁ অশুভ জোট, তাদের সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শগত লড়াই থাকবে, কিন্তু जब
सवाल है त्रिपुरा को जिताना, तब बीजेपी को हराने के लिए बाम और कांग्रेस একসঙ্গে লড়বে। আর সেই লড়াইয়ে আপনাদেরকে সাথে থাকতে হবে। এই আশা রেখে আমার কথা শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ। বন্ধুগণ, এরই মধ্যে আমাদের সভাস্থলে এসে পৌঁছেছেন সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড অমল চক্রবর্তী এবং আসাম থেকে নির্বাচিত লোকসভা বিরোধী উপনেতা শ্রী গৌরব গগৈ। ইতিমধ্যে আমাদের প্রার্থী গোপাল চন্দ্র রায় ওনাদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিয়েছেন। এখন বক্তব্য রাখবেন গৌরব গগৈ, आसाम থেকে নির্বাচিত এমপি এবং লোকসভার বিরোধী উপনেতা। नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस दल के प्रार्थी श्री गोपाल चंद्र राय जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस और वामपंथी दल के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पे उपस्थित दोनों दल के सदस्यगण, यहाँ पे उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मीडिया के दोस्तों और यहाँ पे उपस्थित त्रिपुरा के विभिन्न दुकान, विभिन्न बैकग्राउंड से आए हुए लोग। मेरा नाम गौरव गगोई है, मैं असम से आता हूं और आज यहाँ पे आपके बीच आया हूं गोपाल चंद्र राय जी के हाथ को मजबूत करने के लिए। और आते ही जो मैंने अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं दो शब्द आपके सामने कहना चाहता हूं। दोस्तों, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये कोई साधारण समय नहीं है। ये समय हमारे भविष्य के पर बहुत बड़ा प्रभाव बनाने जा रहा है। त्रिपुरा का ये चुनाव, आपका एक एक वोट आने वाले 5 वर्षों में आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। वोट डालने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम 5 साल और बाइक वाहिनी देखना चाहेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम 5 साल और महिलाओं के प्रति अत्याचार देखना चाहेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि 5 साल और क्या हम बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई का समस्या झेलना चाहिए। और जब आप इन सवालों पर गौर करेंगे तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप लोग कहेंगे कि इस बार बीजेपी को टाटा बाय बाय। हम चाहेंगे त्रिपुरा में वामपंथी और कांग्रेस दल का मिलके एक नया सरकार हो और त्रिपुरा को वापस प्रगति के दिशा पर, शांति, अमन और चैन के दिशा पर हम त्रिपुरा को लेके जाए। भाजपा डर चुकी है दोस्तों। भाजपा देख रही है कि उसके नाव डूब रही है, इसलिए डूबती हुई नाव को बचाने की कोशिश में वो अलग अलग कोशिश कर रही है। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बदला। सोचा कि मुख्यमंत्री जी के बदलने से उनके राजनीतिक भविष्य में परिवर्तन आएगा। लेकिन लोगों ने देखा कि नहीं, मुख्यमंत्री बदलने से भी कुछ फायदा नहीं। जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, अगर मैं क्रिकेट का एक टर्म यूज करूं, हाल ही में क्रिकेट चल रहा है, इसलिए क्रिकेट का एक शब्द अगर मैं यूज करूं तो वो एक नाइट वॉचमैन सीएम है। नाइट वॉचमैन सीएम मतलब अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, चंद दिनों के वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इस बार उनका पद जाने वाला है, उनके सीट पर भी कांग्रेस जीतने वाला है। और यहाँ पे गोपाल चंद्र राय जी तो मुझे लगता है
अगर सबसे बड़ा मार्जिन से अगर किसी की जीत होने वाली है तो वो आपके प्रिय नेता गोपाल चंद्र राय जी की होने वाली है। तो मुख्यमंत्री बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ। बार बार गृह मंत्री अमित शाह जी यहां पे आने लगे, प्रधानमंत्री मोदी जी आने लगे, उनकी रैली फ्लॉप हो गई। उनके बातों पर अब लोग विश्वास नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप पार्लियामेंट में चाहे कितना भी ये कर ले या ये कर ले, अब आपके जुमलों पर, आपके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। बड़ी बड़ी बातें, चुनाव के समय त्रिपुरा के पास आना, चुनाव के बाद त्रिपुरा को भूल जाना, ये अब पद्धति और नहीं चलेगी। अब क्या हो रहा है? अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह जी अपना पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 फरवरी के रात के 12:30 बजे वो चुनाव आयोग के बड़े अफसरों, पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से रात को सीक्रेट मीटिंग करते हैं, छुप छुप के मीटिंग करते हैं। आखिर कारण क्या है? क्या कारण है कि देश का गृह मंत्री चुनाव के 3-4 दिन पहले आके रात के 12:30 बजे छुप छुप कर चुनाव आयोग के अफसरों से मिलना चाहता है, पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से मिलना चाहता है? क्या दबाव बनाना चाहता है? क्या संदेश देना चाहता है? क्या ऐसी बात है जो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने नहीं कह सकता? हम सबको पता है, हम सब समझ चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं गृह मंत्री जी, कोई लाभ नहीं। त्रिपुरा के लोगों ने आज मन ठान लिया है, बीजेपी को जाना पड़ेगा, वामपंथी कांग्रेस सरकार को लाना पड़ेगा, यही सबके मन में। कोई डरने नहीं वाला, कोई नहीं चाहता 5 साल और बाइक वाहिनी के, कोई नहीं चाहता कि ऐसा 5 साल और सरकार झेलना पड़े जहां पे युवाओं को रोजगार न मिले, कोई नहीं चाहता 5 साल और ऐसा मिले जहां पे अशांति का वातावरण हो, कोई नहीं चाहता 5 साल ऐसा हो कि यहां का त्रिपुरा का सरकार का नीति। अफसोस की बात है दोस्तों, मैं असम से आता हूं, पर अफसोस होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज के तारीख में त्रिपुरा सरकार के सिद्धांत, त्रिपुरा सरकार के निर्णय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं होते, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के कार्यालय में आपके सरकार का नियम बनाया जाता है। पिछले चुनाव में क्या हुआ? पिछले चुनाव में असम के मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री आके त्रिपुरा में क्या होगा, सरकार क्या काम करेगी, कौन से नियम आएंगे, कौन से स्कीम आएंगे, टीचर को कितना तनख्वाह मिलेगा, 400 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेजेस कितने होंगे, वो ही तय कर रहे हैं। तो आपके मुख्यमंत्री पद का कोई गरिमा नहीं। यही हाल मेघालय में भी, वहां पर भी मेघालय मुख्यमंत्री का कोई मूल्य नहीं। वहां पर भी बीजेपी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी को भेजकर बोलते हैं कि तुम ही बनाओ नीति मेघालय की, तुम ही बनाओ नीति नागालैंड की। तो सोचो दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है कि भाजपा ने पूरे उत्तर पूर्वांचल के नीति नियम बनाने का जिम्मेवारी आपके राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार हो, अगर आप चाहते हैं कि सरकार की नीति अगरतला में बने, ना कि दिसपुर में, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कांग्रेस वामपंथी दल के सरकार को बनाइए। आप देखेंगे कि सरकार के नियम यहां बनेंगे, हिमंत बिश्व शर्मा जी का यहां पे आना जाना बंद हो जाएगा। आज दोस्तों, ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी जी ने उठाई। मानना पड़ेगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर दूर प्रतिदिन 25-30 किलोमीटर चल चल कर हमारे भारत देश में
सबसे लंबा पद यात्रा अगर किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक नेता ने उठाया है तो वह राहुल गांधी जी ने वो कदम निभाया है। उनको हमको सलाम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, वो चलते गए, लोगों से मिलते गए, लोगों के दुख में शामिल हुए, लोगों के सपनों के बारे में सुना। और आज जब वो उनके मुंह में अब जब शब्द निकलते हैं तो वो राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत नहीं, पूरा देश के जो आवाम की जो बातें हैं, उनके सपने आज राहुल गांधी जी के भाषण में सुनाई देता है। देश जानना चाहता है कि ये अडानी है कौन है ये अडानी। 2014 से पहले इसका नाम किसी ने सुना ही नहीं, और 2014 के बाद दुनिया के 2 नंबर जगह पे पहुंच गया। दुनिया के सबसे धनी लोगों में से 2 नंबर स्थान में मोदी जी का एक खास दोस्त अडानी जी पहुंच गया। क्या अडानी जी दूसरा नीरव मोदी तो नहीं बनेंगे? क्या अडानी जी दूसरा मेहुल चोकसी तो नहीं बनेंगे? क्या अडानी जी दूसरा विजय माल्या तो नहीं बनेंगे, जिसको लेकर देश के लोगों का धन व्यर्थ हो जाएगा? यही प्रश्न कांग्रेस और राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में उठाना चाहते थे। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मन पर कितना दबाव बन रहा है। राहुल गांधी जी ने जहां जहां अडानी का शब्द बोला, जिक्र किया, वहां उनके भाषण से अडानी शब्द को मिटा दिया। आप राहुल गांधी जी के भाषण से अडानी का शब्द मिटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों देश के सामने जो सच्चाई है वो सच्चाई मिट नहीं सकती। अगर हम जानते हैं ये मोदी सरकार अगर काम कर रही है तो एक ही आदमी के मुनाफे के लिए, वो आदमी है अडानी ग्रुप। क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी जी? त्रिपुरा में आके क्या बोले कि उनकी सरकार के दिन में हाईवे बनाया, उनके सरकार के दिन में रेल बनाया, उनके सरकार के दिन में एयरपोर्ट बनाया, उनके सरकार के दिन में पोर्ट बनाया, और फिर उन्हीं के सरकार की नीति आयोग एक एक करके बेचते हैं अडानी ग्रुप को। एयरपोर्ट बेचते हैं अडानी ग्रुप को, हाईवे बेचने का प्लान है अडानी ग्रुप को, किसान के वेयर हाउसिंग को बेचना है अडानी ग्रुप को, पोर्ट को बेचना है अडानी ग्रुप को। यही तो सवाल था राहुल गांधी जी का कि अडानी जी और मोदी जी कितने बार साथ में विदेश में गए, कितने बार मोदी जी के जाने के बाद विदेशी सरकार अडानी के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। यही तो साधारण सवाल था। इतना इससे डर गए कि मोदी जी पार्लियामेंट में क्या बोले कि राहुल गांधी तुम गांधी क्यों नाम रखते हो, नेहरू क्यों अपना उपाधि नहीं रखते। देखो दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री आज इस प्रकार की बातें कर रहा है कि वो राहुल गांधी अपने पिता का नाम क्यों रख रहा है, नेहरू जी का उपाधि क्यों नहीं रख रहा है। ऐसा एक माहौल बन गया है। तो दोस्तों साफ साफ ये जाहिर होता है कि त्रिपुरा में बदलाव होने वाला है, और अगर यही गति हमने पकड़ के रखी, इसी प्रकार से अगर हमने एक साथ मिलकर हमने काम किया, तो आप देखेगा कि दिल्ली में भी परिवर्तन होने वाला है, हमारा सरकार होने वाला है। किसानों का सरकार, उत्तर पूर्वांचल का सरकार, त्रिपुरा के समस्या को समझने वाला सरकार, युवाओं के आकांक्षाओं को समझने वाला सरकार, हम सभी का सरकार, किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का सरकार होने वाला है 2024 में। तो इसीलिए हमको निडर होना है। भाजपा कोशिश करेगी, लाठियां बरसाएगी, गोली चलाएगी, फोन करेगी, डराएगी, धमकाएगी, लेकिन हमको निडर रखना है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये चुनाव में मेरे घर में जो मेरा बेरोजगार बेटा है उसके लिए ये चुनाव में हमको वोट देना है। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं, मेरे बाजार में
हर चीज पर जो आज दाम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, दूध के पैकेट का दाम जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दूध के दाम के बढ़ते हुए दाम पर हमको बाधा देना है। इसलिए इस चुनाव में हमको वोट देना है। हमको वोट देना है क्योंकि हमारे देश में जो संस्कृति है वो भाईचारे की संस्कृति है। हम सभी एक साथ शांति में जीना चाहते हैं, शांति में सांस लेना चाहते हैं। इसलिए ये साधारण चुनाव नहीं, हमको वोट देना है। तो दोस्तों, अंत में अगर मैं एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, निडर होकर आने वाले समय में कांग्रेस और वामपंथी दल का सरकार बनाइए। हमारे जनप्रिय नेता गोपाल चंद्र राय के हाथ को मजबूत करिए, ताकत दीजिए और अपने भविष्य को और सुरक्षित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।